کی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں صاف پانی کی کمی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پینے کی پانی کی سطح میں مسلسل کمی۔ رپورٹ میں پانی کی سطح میں سالانہ تقریباً 3 فٹ کمی کی نشاندہی۔ پی ایس سی نے پانی کی سطح میں مسلسل کمی تشویشناک قرار دے دی۔ واسطہ حکام سے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی پیش رفت اور تاخیر کی وجوہات پر وضاحت طلب۔ پلانٹس کی تنصیب میں غیر معمولی تاخیر زیر زمین پانی کی آلودگی کی اہم وجہ قرار۔ زیر زمین پانی کے تحفظ، سیوریج ٹریٹمنٹ، آبی وسائل کے پائیدار استعمال کی سفارش۔ شہر میں صاف پانی کی کمی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سال 2006 کی رپورٹ میں پانی کی سطح میں سالانہ تقریباً 3 فٹ کمی کی نشاندہی۔ پی ایس سی نے لاہور میں پینے کے پانی کی سطح میں مسلسل کمی تشویشناک قرار دے دی۔ واسطہ حکام سے وضاحت طلب کر لی گئی۔ پلانٹس کی تنصیب میں غیر معمولی تاخیر زیر زمین پانی کی آلودگی کی اہم وجہ قرار دی گئی۔ منصوبے سے متعلق مطالعات مکمل نہ ہونے پر مؤثر تدارکی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ رپورٹ میں لاہور میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب پر زور دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ واسا لاہور کو زیر زمین پانی پر انحصار کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ واسا کو سطحی پانی کے وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ منصوبوں کے لیے درکار انفراسٹرکچر، منظوریوں، عمل درآمد کی صورتحال پر توجہ دلائی گئی۔ رپورٹ میں زیر زمین پانی کی آلودگی روکنے، متبادل آبی ذرائع کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ زیر زمین پانی کے تحفظ، سیوریج ٹریٹمنٹ، آبی وسائل کے پائیدار استعمال کی سفارش کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ واسا لاہور نے ویسٹ واٹر اور ٹریٹمنٹ پلانٹس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز پر کروڑوں خرچ کیے۔ پلانٹس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز پر 49 کروڑ 30 لاکھ 95 ہزار خرچ کیے گئے۔ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز 2019 میں شروع ہوئی۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کی جائے گی۔ بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکنک سے منظور۔ منصوبے کے تحت سیوریج کا پانی صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا۔ 836 ایکڑ رقبے پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا۔ منصوبے پر 56 ارب روپے لاگت آئے گی۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کی جائے گی۔ بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری کے تمام اہم مراحل طے ہو گئے۔ بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکنک سے منظور کرا لیا گیا۔ بابو صابو کے مقام پر 836 ایکڑ رقبے پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا۔ بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے کی کل لاگت 56 ارب روپے ہے۔ منصوبے کے تحت سیوریج کا پانی صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا۔ منصوبہ فرانس کے ڈونر ادارے AFD کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ لاہور کا سیوریج مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے 6 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس درکار ہوں گے۔ منصوبے کی کل استعداد یومیہ 88 ملین گیلن ہوگی۔ اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ درجہ سوم تک کا گھی 500 سے کم پر دستیاب نہیں۔ درجہ دوم گھی 545 سے 550 روپے فی کلو گرام فروخت۔ درجہ اول گھی 595 سے 600 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ کنولا آئل 618 روپے فی کلو گرام فروخت ہونے لگا۔ ضلع انتظامیہ دودھ دہی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت یقینی بنانے میں ناکام۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر، مارکیٹ میں دودھ 220 سے 240 روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی کا جن ضلع انتظامیہ کے قابو میں نہ آ سکا۔ اوپن مارکیٹ میں گرا فروشی کا راج، گرا فروشوں نے سرکاری نقدامے ہوا میں اڑا دیے۔ اوپن مارکیٹ میں گھی، آئل، دودھ، دہی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ درجہ سوم تک کا گھی 500 سے کم پر دستیاب نہیں۔ درجہ دوم گھی 545 سے 550 روپے فی کلو گرام فروخت کیا جا رہا ہے۔ درجہ اول 595 سے 600 روپے فی کلو گرام بیچا جا رہا ہے۔ کنولا آئل 618 روپے فی کلو گرام میں دستیاب ہے۔ ضلع انتظامیہ دودھ دہی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت یقینی بنانے میں ناکام ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں دودھ 220 سے 240 روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دہی کی سرکاری قیمت 190 روپے کلو مقرر کی گئی ہے۔ دہی اوپن مارکیٹ میں 240 روپے سے 260 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ شہری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بنیادی راشن کی قیمتوں میں کمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ گرا فروشی اور ملاوٹ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ کم آمدنی والے طبقے کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خود ساختہ مہنگائی نے گوشت، سبزیوں اور پھلوں کی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 504 روپے مقرر ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 20 سے 25 روپے مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ مٹن 1600 کے بجائے 2400 سے 28 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ بیف سرکاری قیمت 800 کے بجائے 1200 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 504 روپے مقرر ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 20 سے 25 روپے مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ پرچون مارکیٹ میں برائلر گوشت 520 سے 525 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ مٹن 1600 کے بجائے 2400 سے 2800 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ بیف سرکاری قیمت 800 کے بجائے 1200 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پیاز سرکاری
قیمت 189 جبکہ مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو، ٹماٹر سرکاری قیمت 210 روپے جبکہ مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو، لہسن کی سرکاری قیمت 265 مارکیٹ میں 350 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ پھل بھی سرکاری نرخوں سے 20 سے 50 روپے مہنگے بیچے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کی آنکھ پر پیٹرول کا نان سٹاپ چھڑکاؤ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج پھر اضافہ، پیٹرول 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمت 368 روپے 29 پیسے پر جا پہنچی۔ ادھر شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل، بولے پیٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافے سے گھر کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے، آمدنی وہی ہے مگر پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی کی آگ پر روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کا چھڑکاؤ، حکومت نے پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، پیٹرول 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا، پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمت 368 روپے 29 پیسے پر جا پہنچی۔ شہری پھٹ پڑے، شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل، بولے پیٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافے سے گھر کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے، آمدن وہی ہے مگر پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مشکل ہوتا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، چلانے کی ہے، گاڑی بھی چلانی ہے، پیٹرول کبھی 10 روپے زیادہ کھاتے، 15 روپے کھا دیتے ہیں، 5 روپے کم کرتے ہیں، 50 روپے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مشکل ہے بڑا، بائک چلانا، بائک کیسے چلا سکتے ہیں؟ صحیح، ہم تو یہ پیٹرول ہی پورا کر رہے ہیں، گھر میں کیا کرنا ہے؟ جب پیٹرول بڑھ جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، غریب آدمی کدھر گئے؟ کرائے میں پڑ رہا ہے، یہ جیسے کہ ٹرانسپورٹ میں پڑ رہا ہے، ہر چیز میں موٹر سائیکل، غریب آدمی کیا کرے؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ فیسیں دیں، کھانا کھائیں، کرائے دیں یا پیٹرول پورا کریں، شہریوں نے حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ایل پی جی کی طلب میں اضافہ، دکانداروں نے ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی منمانا اضافہ کر دیا، سرکاری قیمت 254 روپے 32 پیسے فی کلو مقرر، شہر میں ایل پی جی 370 سے 520 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی، دکانداروں نے ملبہ ڈیلرز پر ڈال دیا۔ ایک طرف سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ تو دوسری جانب ایل پی جی کی مہنگے داموں فروخت، شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ایل پی جی کی طلب میں اضافے کے ساتھ ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی منمانا اضافہ کر دیا گیا، سرکاری نرخ اور مارکیٹ قیمت میں 266 روپے فی کلو تک کا فرق سامنے آ گیا۔ اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 254 روپے 32 پیسے فی کلو مقرر کی گئی ہے، جبکہ شہر میں ایل پی جی 370 سے 520 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس کے بل بھی ادا کر رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے باعث ایل پی جی بھی خریدنی پڑتی ہے جو سرکاری نرخوں پر دستیاب ہی نہیں، گھر کا چولہا جلانے کے لیے مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ بل آ جاتا 3-4 ہزار روپیہ، ادھر سے 1000 کی گیس بھرواتے ہیں، 3-4 دن ہی نکلتے ہیں۔ ہمارے ہم نواز ہماری یہی گزارش ہے کہ گھر سے گیس آنی چاہیے، یہ اتنے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پتہ نہیں کیسے روزگار چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی گزارش ہے ہماری، تو گھر میں گیس آنی چاہیے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈیلر سے مہنگے داموں ایل پی جی مل رہی ہے، ہمارے لیے قیمت کم رکھنا ممکن نہیں۔ پلانٹ ہے وہ بھی ریٹ مہنگا، گورنمنٹ نہ ادھر جاتی ہے نہ سے وہ سیدھے آتے، گورنمنٹ دکانوں پہ چھاپا مارتی ہے، تو یہی مسائل ہے، اس لیے مہنگا ہو رہا ہے گیس، پیچھے گورنمنٹ ریٹ مہنگا، پلانٹ بھی مہنگا کر رہے ہیں، ادھر ڈیلر بھی مہنگے کر رہے ہیں گیس، اس میں تو ہم بھی کچھ بچائیں گے، یہ کرایہ بھی دے رہے ہیں، ادھر اور سو مسائل ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے ایل پی جی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ ایل پی جی کی فروخت سرکاری قیمتوں کے مطابق کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شہر کی مارکیٹوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئی، سبز جھنڈوں، بیجز اور سجاوٹی سامان کی خریداری جاری ہے، شہری گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے خریداری میں مصروف ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر کی مختلف مارکیٹوں میں سبز جھنڈوں، بیچز، برقی کمکوں اور دیگر سجاوٹی سامان کی خریداری میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چھوٹے بڑے سبز جھنڈوں، بیچز اور گھروں کو سجانے کے لیے مختلف سامان خرید رہے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتے ہی سجاوٹی سامان کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر محفل میلاد اور دیگر مذہبی پروگرامز کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔
जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां करीब आते ही लाहौर के बाजार भी सब्ज रंग में रंगने लगे हैं। मार्केटों में जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से झंडों, बैचेस, झंडियों और दीगर सजावटी सामान की मांग बढ़ रही है। बवजह तख्लीक कायनात हैं, सरकार की वजह से अल्लाह ने दुनिया बनाई, सब रौनकें सरकार से हैं। हमारी औलादें, हमारा खाना पीना, हमारा रिज़्क़, घर बार सब सरकार के सदक़े से। तो हम अपने इस ईद मिलादुन नबी के मौका पर फराग दिली से जितनी अल्लाह ने हमें वुसअत दी है, पूरी कोशिश से सरकार का मिलाद मनाएंगे। इसको मनाने के लिए हम लोगों ने अपने घरों को चरागा किया है। यकम रब्बुल अव्वल से हम लोगों ने अपने घरों पे लाइटें लगा दी हैं। हमारी गलियों के अंदर जो हैं वो झंडे वगैरह लग चुके हैं। अब 11 रब्बुल अव्वल की रात हमारी जो मोहल्ले की मस्जिद है, हमने वहाँ पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस रखी है। शहरी अपने घरों, दुकानों और गली मोहल्लों को खूबसूरत अंदाज में सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में जश्न ईद मिलादुन नबी की रौनकें भी नुमाया। शहर में एक बार फिर पतंगे उड़ेंगी, लाहौर की फजाओं में बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। वज़ीर आला का मार्च 2027 में बसंत का ऐलान। रंगों के मेले बसंत को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी। इंतजामात और हिफाजती इकदाम के लिए ज़राई इंतजामिया मुतारिक। डोर बनाने के लिए लाहौर में 5 मखसूस जोन कायम करने की तजवीज़। मनावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, LDA सिटी निश्तर, रावंड मार्केट में डोर साजी पर गौर। रागटीरा कैंट और सगिया पुल रावी पर डोर तैयार करने की तजवीज़। डोर की तैयारी के लिए 500 से 600 पॉइंट्स लगाए जाएंगे। शहर में एक बार फिर पतंगे उड़ेंगी, लाहौर की फजाओं में बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। वज़ारा ने बसंत का ऐलान किया तो जिले इंतजामिया ने तैयारी पकड़ ली। लाहौर में डोर की तैयारी के लिए 5 मखसूस जोन कायम करने की तजवीज दे दी गई है। मनावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, LDA सिटी, निश्तर, ड्राइवर मार्केट में डोर साजी की जा सकती है। रागटीरा तहसील कैंट और सगिया पुल रावी को भी डोर की तैयारी के लिए तजवीज किया गया। मुजव्वज़ा मकामात पर डोर की तैयारी के लिए 500 से 600 पॉइंट्स लगाए जाएंगे। बसंत के दौरान पतंगबाजी के मवाद की कमी को दूर करने के लिए मौसर मैनेजमेंट की जाएगी। डोर की तैयारी के लिए मखसूस जोन्स में कड़ी निगरानी होगी। ममनुआ धागे और केमिकल की रोकथाम भी यकीनी बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्कूल के बच्चों का सफर महफूज बनाने के लिए इकदाम। स्कूल वैन्स, रिक्शों, बसों में गैस सिलेंडर और ओवरलोडिंग पर एक्शन होगा। CTO बोले बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाली किसी भी गाड़ी, वैगन और रिक्शे में LPG सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होगा। DSPs और एजुकेशन यूनिट को स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को एजुकेट करने का हुक्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सफर को महफूज बनाने के लिए इकदाम। स्कूल वैन्स, रिक्शों, बसों में ओवरलोडिंग, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की शामत आएगी। नन्हे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात मिल गए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि बच्चों को स्कूल ले जाने वाली किसी भी गाड़ी, वैगन और रिक्शे में LPG सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी रिक्शा ड्राइवर आगे वाली सीट पर किसी बच्चे को साथ नहीं बिठाएगा। रिक्शों की साइड्स पर बैग और दीगर अशिया भी लटकाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने कहा कि कैनाल रोड पर भी चलने वाले रिक्शों में आगे वाली सीट पर किसी को बिठाने की इजाजत नहीं। पिकअप ड्राइवर फ्रंट सीट पर एक से ज्यादा सवारी बिठाने हरगिज इजाजत नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 4,42,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। 1,49,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाए। 1,43,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। शहरियों का लाइसेंस बनाने का रुझान बढ़ने लगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 4,42,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 1,49,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1,45,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 1,46,000 शहरियों ने लर्निंग, रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाए। 1,000 से ज्यादा शहरियों ने गुमशुदा लाइसेंस को दोबारा हासिल किया। 3,000 से ज्यादा शहरियों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी किए। 73,000 से ज्यादा शहरी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात से मुस्तफीद हुए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाना जुर्म है। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स को भारी जुर्मानों और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना है। ट्रैफिक पुलिस शहरियों में लाइसेंस की अफादियत के शऊर को उजागर कर रही है। पंजाब हुकूमत का सरकारी कॉलेजों में कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती का फैसला। CTI इस प्रोग्राम के जरिए तदरीसी खला आर्जी बुनियादों पर पूरा हो सकेगा। भर्ती तदरीसी बोझ और तलबा साजा के तनासुब की बुनियाद पर होगी। महकमा हायर एजुकेशन को सरकारी कॉलेजों में जरूरत के मुताबिक भर्ती करने की हिदायत।
पंजाब हुकूमत ने सरकारी कॉलेजों में कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती का फैसला कर लिया। CTIs प्रोग्राम के जरिए तदरीसी खुला आर्जी बुनियादों पर पुर हो सकेगा। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती तदरीसी बोझ तलबा और असातिज़ा के लिए तनासुब की बुनियाद पर होगी। गुज़िश्ता तालीमी साल 2025-26 में 8,084 CTIs भर्ती किए गए थे। 8,084 में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए कोटा भी मुख्तस किया गया था। 2025-26 में इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए तैनाती 7 माह, BS प्रोग्राम्स के लिए 10 माह तक रही। गुज़िश्ता CTIs को माहाना 50,000 रुपए वजीफा दिया गया। 2024-25 में पंजाब भर में 7,354 भर्ती किए गए थे। 2024-25 में 6 माह के लिए तैनात किया गया और माहाना 50,000 रुपए वजीफा दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सरकारी कॉलेजेस में जरूरत के मुताबिक भर्ती की हिदायत की गई है। कक्की अवान टाउन मुल्तान रोड के रिहायशी सीवरेज के संगीन मसले से दो चार हैं। गंदा पानी गलियों में जमा, घरों के अंदर और बाहर भी सीवरेज का पानी मौजूद है। रिहायशियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कक्की अवान टाउन मुल्तान रोड में सीवरेज का नाकिस निजाम अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गया। गलियों में कई रोज से गंदा पानी जमा है। आम दरख्त मुतासिर होने के साथ साथ मकीनों को घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किलात का सामना है। जलूस कड्डे दफ्तर गए हैं, साड़ी किसी आवाज नहीं सुनी। अखीर दरखास्त दी है, सुबाई मोत से बाला ते पानी आया ते सारा टोटली मुल्तान रोड तो लाके पैप खराब है, लीकेज है और गंदा पानी ते गटरां दा मिक्स पानी सानू मिल रहा है। वासा को भी शिकायत की है, बिल्कुल हल नहीं निकला। 15 दिन हो गए हैं, सेवरेज का पानी और गटर का पानी ये मिक्स होके आ रहा है। मकीनों के मुताबिक सेवरेज का पानी गलियों तक महदूद नहीं, मुतअद्दिद घरों के अंदर और बाहर भी पानी जमा है। गंदे पानी से ताफून फैलने लगा है। जी शिकायत की है लेकिन कोई बंदा हमारी हेल्प नहीं कर रहा। पानी हमारा सारा सामान डूबा पड़ा है, घर डूबे पड़े हैं और साफ पानी और गटर का पानी मिक्स होके आ रहा है। पाइप लाइन टूटी पड़ी है। मकीनों ने आला हुकाम से सेवरेज निजाम ठीक करने और गलियों में जमा गंदे पानी की फौरी निकासी आप का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद सलमान, नाजो करीम और मलिक लाल मोहम्मद ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अवामी मनसूबों और हल्कों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी दोरैया रोड की तामीर, मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन और गुलगश्त ब्रांड रूट की तामीर और बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और खराज तहसीन पेश किया। अरकान ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुल्तान में सड़कों के अपग्रेडेशन को भी काबिल तहसीन करार दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जर्मनी की सफीर एना लेपल की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के मौके पर जर्मन की सफीर ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सालिसे के किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है और उसने हमेशा अमन की बात की है। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के माबैन कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान की फौजी और सिविल क़यादत के किरदार को सराहते हैं। ईरान अमरीका जंग से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत मुतासिर हुई। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फुर्सत देने की ज़रूरत है। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में अवामी ताजर इत्तेहाद और पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत ने पीआफ अलायंस का मुकम्मल साथ देने का ऐलान कर दिया। हाजुल कुरान मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पीआफ अवामी ताजर इत्तेहाद और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में अवामी ताजर इत्तेहाद और पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत ने पीआफ अलायंस का साथ देने का ऐलान कर दिया। अवामी तहरीक मरकजी सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर ने पीआफ अलायंस की जानिब से अवामी ताजर इत्तेहाद के उम्मीदवार शहजाद अहमद को चैम्बर इलेक्शन कॉर्पोरेट क्लास का उम्मीदवार नामजद करने पर शुक्रिया अदा किया और इलेक्शन में मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। अंजुम निसार साहब ने पहले भी फरमाया था और इन्होंने इस आने वाले लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए जिन बाकी दीगर लोगों का इंतखाब किया है उसमें हमारे छोटे भाई का भी इंतखाब किया है, शहजाद भाई का। चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, वाइस चेयरमैन पीआफ ताहिर मंसूर चौधरी, राना शाबान अख्तर, चेयरमैन अवामी ताजर इत्तेहाद हाजी मोहम्मद इसहाक, दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। मियां अंजुम निसार ने चैम्बर इलेक्शन में सपोर्ट पर खुरम नवाज गंडापुर और दीगर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अली मियां ने भी इजहार ख्याल किया। आपका बेहतरीन कैंडिडेट अंजर साहब की क़यादत मैं समझता हूँ और फिर नेक दिली सिद्क़े दिल से खिदमत का जज्बा
मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह जो इलेक्शन 23 सितंबर और 24 को हो रहे हैं, इंशाल्लाह हमें ये अल्लाह कामयाबी देगा। मैं समझता हूँ हम सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि आप पहले भी बड़ी मेहरबानी करते रहे। लास्ट ईयर भी आपने हमें, लास्ट ईयर तो नहीं 2024 में आपने मतलब भरपूर हमारी हिमायत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा जो पैनल है उस वक्त सुरखरू हुआ, हम जीते और बड़ी लीड से जीते। इंशाल्लाह इस दफ़ा तो आपका अपना कैंडिडेट है तो मुझे लगता है कि जोश व खरोश पहले से बहुत ज्यादा होगा। चेयरमैन अलायंस प्योफ प्रोग्रेसिव बिजनेस नेशनल फ्रंट मियां अंजुम निसार ने कहा कि सनत और तिजारत के हर शोबे से बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। कैमरामैन अंजुम महमूद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के 403वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़ जारी है। मज़ार पर हाज़िर और फातह ख़ानी के लिए ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मुल्क भर से अक़ीदतमंद हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुँच रहे हैं। तफ़सीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। रहमतुल्लाह अलैह के 403वें उर्स का आज दूसरा रोज़ है, जिसमें ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। हर शख्स जो है वो अपने अपने लिहाज से अपनी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहा है। जबकि महफिल समा का जो है वो एहतमाम होता है उर्स के तीनों रोज़। इस वक्त हमारे साथ वो तमाम अशख़ास मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ हर साल उर्स में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि यहाँ पर जो महफिल होती है, महफिल समा होती है, उसके रूह रवां है। और यहाँ पर ये सिर्फ अकीदत का एक मज़हर है और उसके साथ साथ बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पर ना सिर्फ लंगर का वसी इंतज़ाम जो है वो करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपनी अपनी मोहब्बत और अपने अपने अकीदे के लिहाज से यहाँ पर जो अकीदत और मोहब्बत का एहतराम करते हैं, जिसको तमाम तर यहाँ पर आने वाले जो है उसको मुलाहिज़ा करते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान साहब, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर उर्स के हर साल जो है वो अपनी खदमात जो है वो पेश करते हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो क्या रूहानी मंजर होता है, क्या जो है कैफियत होती है, जिसको बयान करना शायद अल्फाजों में मुश्किल हो, लेकिन उसका मुशाहिदा जो है वो आप क्या करते हैं? जी, यही मुशाहिदा है कि ये सूफियों का रंग है। ये हमारे बड़ों ने जो हमें बताया है कि ये भी एक ग़िज़ा है, सूफ़ी की ग़िज़ा है, जो कवाली है, समा है। इसमें जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह से ये निज़ाम चलता हुआ आ रहा है। हर दरगाह पर जो सिलसिलावार दरगाह कादरी हो गया, चिश्ती साबरी सिलसिले जितने भी हैं सलासल, इनमें महफिल समा को रूह की ग़िज़ा समझा जाता है। और इसकी एक अपनी कैफियत है, रूहानी कैफियत है। यहाँ पर लोग आके इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और ये सालाना महफिल के साथ साथ हर जुमेरात को भी नकात पजीर होती है। नमाज असर से लेकर इशा तक जो है महफिल होती है, उसमें भी जोर आगाज़ होता है। मुझे ये बताएगा कि उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आवाम आती है, आवाम का जमे गफ़ीर आता है, लोग आते हैं, तो यहाँ पर एक क्या माहौल होता है? और तमाम तर माहौल को देखते हुए, तमाम तर मनाजिर को देखते हुए क्या बात करेंगे? यहाँ पर माशाल्लाह ये हम लोग जुमेरात इस दफ़ा की साथ जुम्मे के चिराग थे, इनके कल चिराग गुजरे हैं। आज ये आखिरी नशिस्त है और इसमें हमने कल से देखा है कि लोग टोलियों की सूरत में जोक दर जोक यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और सरकार के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं और महफिल समा से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं लोग यहाँ से। और अपने उनको बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं वो कि हम लोग महफिल समा को यानी कि इधर आके बड़े बड़े कवालों को सुनना, जो लोग नहीं इनका जो कर सकते, बुला सकते हैं लोगों को, तो इस आस्थाने पर आते हैं। जैसे दाता अली जवेरी भी माशाल्लाह महफिल समाती, बड़े बड़े नाम पर कवाल हैं आस्थाने पे और अपनी अपनी अकीदत का, अपनी अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार करते हैं। अभी कुछ देर में महफिल समा का भी बाकायदा आगाज़ होगा और यहाँ पर तमाम आने वाले ज़ायरीन की जानिब से ना सिर्फ जो है वो आता है दरबार। शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। फातिमा मेमोरियल अस्पताल शादमान में नूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नूर शनाख्त लीडरशिप प्रोग्राम के समर प्रोग्राम 2026 के ख़ितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों, वालिदैन, इंतज़ामिया और मुख्तलिफ शोबाए हर ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। समर प्रोग्राम 2026 की इख्तितामी तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक, कौमी तराने और कलाम इकबाल से किया गया। प्रोग्राम के जरिए नौजवान को इलामा इकबाल के तसव्वुर, फर्द कामिल की रोशनी में अपनी शख्सियत और किरदार को बेहतर बनाने की तरगीब दी गई। उर्दू जुबान, अदबी इजहार और मुस्बत मुकालमे के फरोग के लिए तुलबा को मुख्तलिफ सरगर्मियों और मौके फराहम किए गए। समर प्रोग्राम्स के दौरान होने वाली सरगर्मियों और नुमाया लम्हात पर मबनी खुसूसी वीडियोस भी तकरीब में पेश की गईं। मकसद यही है कि पाकिस्तान क्या है, किसका है, तो हमारा है। कौन है पाकिस्तान? हम हैं। तो अब क्या करना है? आप सबसे बड़ा सरमाया है ये जो बच्चे हैं। तो दुनिया में अब बुढ़ापा तारी हो गया, जो हमारे से ये इंपीरियलिस्ट सब कुछ तो ले गए, दौलत भी ले गए, हमारी ज़बान भी ले गए, कल्चर भी उठा लिया।
इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे के चले गए, इन सब चीज़ों को रद्द करना है। हमने इनको ये सब कुछ बताया कि आपके पास वो कुछ है जो इनके पास 5000 साल पहले से है, जो इनके पास नहीं था। तकरीब में नूर फाउंडेशन की चेयरपर्सन शहीमा रहमान समेत प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अनवर, मंसूर जमाल और फरहान शराजी ने शिरकत की। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि नौजवान नस्ल को सिर्फ तालीमी मैदान तक महदूद रखने के बजाय इन्हें क़यादत, समाजी जिम्मेदारी, तख्लीकी इजहार और मुस्बत मुकालमे के मौके फराहम करना भी जरूरी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है that is way beyond that. हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम था, दिस वाज नेम्ड शनाख्त लीडरशिप प्रोग्राम। दौरे हाजिर की जितनी वो ज़रूरियात जो आगे बढ़ने के लिए आपको दरकार हैं, उनको हम अपनी शनाख्त के साथ उनका एक इम्तिजाज पैदा करें और फिर हम आप लोगों को बताएं कि हम अपनी शनाख्त के साथ अक़वाम आलम में किस तरह तरक्की कर सकते हैं। नूर शनाख्त लीडरशिप प्रोग्राम के समर प्रोग्राम्स 2026 की इख्तितामी तकरीब में नौजवान की तख्लीकी सलाहियतों, कायदाना सलाहियतों और कौमी और समाजी शऊर को उजागर किया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42।